You don't have the cards right now. With us, you start having Not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What III. you think You're about? gambling with What is World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all back to respect to you. you. Far more than a lot of people said. Where- तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं हैं, सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। तुम कार्ड प्ले कर रहे हो, तुम हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा करके तुम वर्ल्ड वॉर 3 को बढ़ावा दे रहे हो। मैं कोई कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं अमेरिका की बेइज्जती कर रहा हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में बीते शुक्रवार 28 फरवरी को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बहस ने अब नया मोड़ ले लिया है। ट्रंप की कहावत सच होती दिख रही है। बहस के दौरान वो जेलेंस्की से कह रहे हैं कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 को बढ़ावा दे रहे हो। अब लग भी ऐसा रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बहस के बाद रूस अमेरिका के बीच बनी तनातनी से दुनिया 2 खेमों में बट गई है। पहला खेमा जिसमें अमेरिका के समर्थक खड़े हो गए हैं और दूसरा खेमा जिसमें यूक्रेन के समर्थक डटे नजर आ रहे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों की सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने वाला नाटो अब बिखरता नजर आ रहा है। कारण स्पष्ट है, ट्रंप और जेलेंस्की की तू मैं, क्योंकि जब से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस हुई है तब से ही नाराज अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य और आर्थिक मदद बंद करने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कई यूक्रेनी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया है। ऐसे में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल कुछ देशों ने यूक्रेन को अपना समर्थन दे दिया है, जबकि अमेरिका भी नाटो का सदस्य है, लेकिन वो यूक्रेन से बिफर चुका है। यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों में नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम शामिल है। इन देशों के समर्थन से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई सबसे ज्यादा मजे में है तो वो रूस ही है। जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे का ये नतीजा देखकर निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद खुश हो रहे होंगे। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की बहस ने पुतिन को सीधे तौर पर रणनीतिक लाभ दे दिया है। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसकी एक झलक हम आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की बहस को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं? उनके सुधरने की कोई संभावना नहीं बची है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी प्रकार की मदद को रोकने का आह्वान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान भी ट्रंप लगातार यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि पर सवाल उठा रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी ऐसे बयान आते रहे, जिससे अंदाजा लग रहा था कि अमेरिका अब यूक्रेन को और मदद देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने अब तक 3 सालों में यूक्रेन को रूस के खिलाफ वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता मिलाकर कुल 114 बिलियन यूरो की मदद की है। ये यूरोपीय देशों की 132 बिलियन यूरो की सामूहिक मदद से कुछ ही कम है। यानी दुनिया भर से यूक्रेन को मिल रही मदद का लगभग आधा केवल अमेरिका से आया है। ऐसे में अगर अमेरिका की सहायता बंद कर देता है
तो क्या जिन देशों ने अब बहस के बाद यूक्रेन का साथ दिया वो जेलेंस्की की मदद करेंगे? और अगर नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की मदद करते हैं तो अमेरिका क्या करेगा? ये सवाल अभी चस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।